Good evening, guys. Warm welcome to all. This is the market outlook session for 20th June 2022. We will be taking a look at the number of factors that can drive markets this week. So, I will be talking about Nifty, important levels of Nifty, Nifty Bank, important levels to watch out for, and Nifty IT, and what are the stocks in Nifty IT that you can keep on your radar for tomorrow's market. So let us first talk about how US markets closed on Friday. US 100, which is the technology index in America, it closed higher 0.93%, 103 points. US 30, which is Dow Jones Industrial Average, it closed lower 0.17% down 51 points. Talking about SGX Nifty futures, we closed at 15,350, which was higher than Nifty's closing on Friday. So we are right now trading at a 50 points premium. Let us see how we will open tomorrow. Because US markets opened flat, we have to see how the world markets will open tomorrow in the morning. And that is what will guide the Asian markets and their openings. Let us talk about the data that has come on Friday. So in the cash segment, FIs have sold 7,818 crores of Indian shares and DIs have bought 6,086.92 crore worth of shares in the Indian market. So the FIs have sold around $1 billion of Indian equities and DIs, they have absorbed most of the selling with their 6,000 crores buying on Friday. So DIs continue to buy in the Indian markets and FIs continue to sell heavily in the cash segment. Let's talk about what are the positions that are built by FIs and retailers in the F&O segment. So FIs transactions looks bullish. They have bought stock futures, they have bought index futures, they have bought index calls, and they have sold index puts. So all the transactions done by the FIs on Friday hint towards their bullish stance on the markets. Clients' transaction looks bearish. They have sold index futures, they have sold index calls, and they have bought index puts. So the data is bullish. And now let us see how we can play the bullish view on the data. Okay. तो मैं आपको बताता हूँ what are the important levels that you have to keep in mind and how you can play this bullish view on the markets tomorrow. Okay. So let us open the charts of Nifty. I have marked few important levels on the charts of Nifty 15 minutes time frame. ठीक है, पहले तो I have marked previous day low, I have marked previous day high. ठीक है, मार्केट्स इस रेंज में मूव कर रहे थे फ्राइडे को. तो ब्रेकआउट ऑन दी आइदर साइड, या तो अपन प्रीवियस डे लो तोड़े या फिर प्रीवियस डे हाई तोड़े तो मोमेंटम आएगा. बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि डेटा बुलिश है, तो हाउ वी कैन प्ले दिस बुलिश डेटा ऑन द चार्ट्स ऑफ निफ्टी. आइदर वी बाय द सपोर्ट ऑफ फ्राइडे, या तो अगर मार्केट नीचे खुल जाता है, स्लाइटली गैप डाउन हो जाता है, या फिर थोड़ा सा नीचे खुल जाता है, या फिर खुलने के बाद नीचे आ जाता है, तो वी ट्राई टू बाय द मार्केट्स एट फ्राइडे सपोर्ट विच इज नियर 15,180 टू 15,200 लेवल. या तो आप ये लेवल मार्क करके रख सकते हो. अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यू हैव टू थिंक ऑफ प्लेइंग अ रिवर्सल फ्रॉम प्रीवियस डे लो. ठीक है. दूसरा स्टांस क्या हो सकता है कि अगर मार्केट स्लाइटली फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है एंड आपका प्रीवियस डे हाई तोड़ता है, तो एक मोमेंटम पॉसिबल है मार्केट्स में, तो देन वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन निफ्टी. तो ये क्रूशियल लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो. ये वाला लेवल एक मार्क कर रखा है मैंने अपने चार्ट्स पे, जहां से ब्रेकडाउन आया था निफ्टी में. तो पॉसिबल है कि अगर अपन रेंज तोड़ते हैं फ्राइडे की एंड वी स्टार्ट मूविंग हायर, तो इन द नेक्स्ट 2 days वी कैन अचीव दिस टारगेट. तो इसीलिए आप ये लेवल मार्क करके रख सकते हो, बिकॉज नाउ जब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीवियस सपोर्ट विल नाउ एक्ट एज योर रेजिस्टेंस. फाइन. मैं आपको एक टारगेट और बताऊंगा जो आपको लेके चलना होगा इन द मिडल ऑफ दिस. ठीक है, ये बहुत बड़ा टारगेट है, तो मे बी मिडल से भी मार्केट वापस नीचे आ जाता है लॉट ऑफ टाइम्स. तो क्या ऐसी जगह पे अपन अपना टारगेट प्लेस कर सकते हैं,
कि वहां पे अपन अपना पोजीशन बुक कर लें स्लाइटली एंड देन ट्रेल करें, तो इट विल बी बेटर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी बैंक. ठीक है, तो निफ्टी बैंक ऑल्सो आई हैव मार्क्ड टू इंपॉर्टेंट लेवल्स. वन इज प्रीवियस डे लो एंड द अदर इज प्रीवियस डे हाई. तो निफ्टी बैंक क्लोज्ड नियर इट्स प्रीवियस डे हाई, हुई प्रीवियस डे हाई के पास ही क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक. अब मैंने दो लेवल मार्क कर रखे हैं निफ्टी बैंक के चार्ट्स पे विच आर वेरी क्रूशियल लेवल्स. तो जब भी अब अपन निफ्टी बैंक को ट्रेड करेंगे तो ये दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी जो बाइंग साइड पे ट्रेड करना चाहता है उनकी. ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ फ्राइडेज मार्केट. नाउ अगर मार्केट एज पर एसजीएक्स निफ्टी गैप अप हो जाता है तो बैंक निफ्टी भी गैप अप पे खुल सकती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि बैंक निफ्टी इन दो लेवल्स के मिडिल में खुलेगी या फिर इस लेवल पर खुलेगी. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इज कि अगर मार्केट इस लेवल पे खुल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है मार्केट के लिए एंड वी कांट गो फॉर एन इमीडिएट बाइंग. ठीक है, मार्केट में इमीडिएटली बाय नहीं कर सकते. तो अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, तो देन वी कैन बाय द मार्केट्स फॉर दिस टारगेट. ठीक है, अगर मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में खुल जाता है, ठीक है, इन दो लेवल्स के बीच में खुल जाता है, तो वी विल वेट कि मार्केट्स पहले गैप फिल कर दे और फिर जब गैप फिल करने के बाद गैप वाले एरिया से रिवर्स करे तो यहाँ से अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें एंड इस टारगेट के लिए ट्रेड करें. ये अपना फर्स्ट टारगेट होगा, ये अपना सेकंड टारगेट होगा. लेट मी टेल यू व्हाई आई हैव मार्क्ड दीज लेवल्स. देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन आया था इस लेवल का, तो ये लेवल मैंने मार्क किया है. दिस कैन बी द फर्स्ट टारगेट एंड यहाँ पे अपन क्लोज हुए थे 15 जून को. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहता है बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे जब अपन वापस से ऊपर जाते हैं. ठीक है, तो ये दो लेवल मैंने मार्क किए. यहाँ पे काफी कंसोलिडेट हुआ था मार्केट, फिर एक बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन गया था, तो ये एक फर्स्ट सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा निफ्टी बैंक पे. अगर अपन इसको क्रॉस कर लेते हैं तो ये एक लेवल है जिसके बाद निफ्टी बैंक गैप अप हुआ था. तो मे बी इट इज पॉसिबल कि अपन वापस से ये जो लेवल है जिसको ब्रेक किया था उसको रिटेस्ट करने आ जाए. तो ये दो लेवल आपको मार्क करके रखने हैं चार्ट्स पे. जब अपन कोई भी बाइंग ट्रेड्स लेंगे निफ्टी बैंक पे तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगा. ठीक है, तो दिस इज द प्लान. अगर मार्केट गैप अप हो जाता है निफ्टी बैंक पे और इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में खुल जाता है तो देन वी विल थिंक कि मार्केट पहले गैप फिल कर दे और फिर जब रिवर्स करेगा तो अपन यहाँ पे टारगेट लेके बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक. ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं आपके लिए. तो अगर मार्केट जहां भी खुलता है यू कैन प्ले बाय दीज लेवल्स, ये आपकी हेल्प करेंगे ट्रेड्स लेने में. और मैंने आपको बुलिश व्यू के साथ अलाइन करके ट्रेड्स बताइए बिकॉज द डेटा इज बुलिश. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू प्ले दिस बुलिश डेटा ऑन द मार्केट्स. नाउ दो स्टॉक्स हैं, अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली यू विल सी सम शॉर्ट कवरिंग इन निफ्टी आईटी बिकॉज निफ्टी आईटी 9% नीचे था लास्ट वीक. तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, सी लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू सी निफ्टी, अगर आप निफ्टी को देखोगे तो लास्ट के 10 सेशंस में निफ्टी इज ऑलमोस्ट 10% डाउन. ठीक है, निफ्टी ने 3 जून को हाई बनाया था 16,793 एंड नाउ निफ्टी हैज मेड अ लो ऑफ 15,200. तो ऑलमोस्ट एक 10% की करेक्शन आई है. सेम टाइम पे यू विल ऑल्सो सी कि निफ्टी आईटी में भी ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन आई है. 10% या 10% से ज्यादा की करेक्शन आई है. तो डेफिनेटली अगर निफ्टी वापस से ऊपर जाएगी तो इट विल बी लेड बाय द आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर लीड करेगा उस शॉर्ट कवरिंग को. यू हैव टू फोकस ऑन द आईटी स्टॉक्स. टू स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ जिन पे आप फोकस रख सकते हो. वन इज इन्फोसिस. इन्फोसिस का मैं आपको बताता हूँ व्हाट शुड बी योर प्लान. See, after opening at a gap down, Infosys played in a range. एक range में play कर रहा था on Friday. It closed near its days high. तो मैंने यहाँ पे एक बहुत crucial resistance mark कर रखी है charts पे. This is the closing price of Thursday as well as this is near the day high of Friday. तो ये level बहुत important level है. ठीक है, ये आपका day high भी है. Let me show you on the daily charts. ये आपका डे हाई भी है फ्राइडे का और थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस भी है. तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इन्फोसिस के चार्ट्स पे. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर फॉर टुमारो. अगर मार्केट आपका
इस लेवल के ऊपर बंद हो जाता है तो डेफिनेटली यू कैन प्ले फॉर अ टारगेट ऑफ 1420 लेवल्स। यहाँ से ब्रेकडाउन आया था मार्केट में, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1420। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाता है तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा 1440। ठीक है, लेट मी शो यू ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हाउ यू हैव टू प्ले दिस व्यू। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यू हैव टू बाय इन्फोसिस। योर फर्स्ट टारगेट विल बी 1420। अगर 1420 के ऊपर निकल जाता है इजीली, देन 1440 आपका सेकंड टारगेट रहेगा इन्फोसिस पे। सेकंड स्टॉक इज टीसीएस। टीसीएस भी रेंज बना के डे हाई के पास आके बंद हुआ है। नाउ इफ वी आर एबल टू ब्रेक प्रीवियस डे हाई ऑन टीसीएस, तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी टीसीएस में ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, इफ इट इज ब्रेकिंग इट्स पीडीएच दैट इज प्रीवियस डे हाई, तो आप टीसीएस को बाय कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट तो स्मॉल होगा विच विल बी अराउंड 3145 या फिर 3140 के आसपास आप रख सकते हो। अगर मार्केट 3145 के ऊपर निकलता है, इफ मार्केट गोज अबव 3145, देन डेफिनेटली टीसीएस आपको 3175 तक दिख सकता है, बिकॉज इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था अपन ने पहले, तो ये लेवल आपका वापस से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो दिस कैन बी योर सेकंड टारगेट 3175 लेवल्स। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा अबव दिस पीडीएच लेवल 3145, तो वो आपका एक टारगेट रख सकते हो आप टीसीएस पे। लेट्स टॉक अबाउट कि एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ट्रैक करनी चाहिए सी, दैट इज द डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अ वेरी क्रूशियल लेवल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे डॉलर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। तो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसीज ट्रैक कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा तो एफआईज के लिए इंडियन इक्विटीज, इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज एक्सपेंसिव हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी मोर आउटफ्लोज फ्रॉम द इंडियन मार्केट। तो अगर आपका डॉलर पिछले स्विंग के ऊपर इस वीक क्लोजिंग दे देता है, तो दैट विल बी वेरी बुलिश फॉर द डॉलर इंडेक्स, और वही आपके मार्केट के लिए और बियरिश होगा। बट अगर अपन पिछले स्विंग हाई से रिवर्स कर जाते हैं, दैट विल बी गुड फॉर निफ्टी, इमर्जिंग मार्केट्स एंड ऑल द क्रिप्टो करेंसीज। तो ये आप ट्रैक कर सकते हो कि अगर डॉलर यहाँ से रिवर्स होता है तो डेफिनेटली यू विल सी गुड शॉर्ट कवरिंग ऑन द इमर्जिंग मार्केट एंड द क्रिप्टो करेंसी स्पेस एज वेल। सो दिस इज अबाउट द मार्केट आउटलुक फॉर द कमिंग वीक। मैंने आपको बताया आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हो, एंड दिस इज also I have already shared the levels for Nifty, Nifty Bank and important stocks that you have to watch out for tomorrow's market. Thank you guys. I wish you all the best for tomorrow.